Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. You all know that we are studying which chapter? Chapter 9. Chapter 9. Chapter 9, reproduction plants. Reproduction plants. Yesterday we have discussed about that there are two types of reproduction in plants, that is asexual means and sexual means. In asexual, we have seen that it consists of four main types, that is buddings, fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. Vegetative propagation consists of the vegetative part of the plant, that is the root, stem, and leaf, and the reproduction process is carried out through these vegetative parts. And in vegetative propagation by stem, you have seen that there are different types of stem which are responsible for reproduction in different, like we have seen that in potato, the bud is responsible, which has got an outgrowth from the eye part of the potato, and you can see it in the nowadays, which is known as old potato. अभी जो market में है पुराना आलू जिसको बोलते हैं, उसमें आप इस तरह का bud type of outgrowth देख सकते हो, और ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है eye से. और modified stem जैसे कि ginger और turmeric is also can also produce new plants. Then in onion, the special part through which we can which that plant can reproduce is through the bulbs, the scales which we see. That whole scale developed or gives an outgrowth, green outgrowth, and that is that in that way we can cultivate a new type of new plant which is coming from the old one by sowing that whole body. और अभी आप देखोगे किसी अनियन को आप अपने वेजिटेबल बास्केट में कुछ दिन तक छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, तो उसमें से एक, अभी ये सीजन है, एक ग्रीन कलर का आउटग्रोथ ग्रो कर जाएगा. So that is the development of that plant from that bulb. उस bulb scaly leaf से आपको ये. Then gladiolus and colocasia, जिसको कि अरबी भी बोलते हैं हिंदी में, इसमें आपका vegetative part से, that is your stem part which is modified. इसमें जो प्लांट ग्रो करता है वो है डिस्कस इन बिटवीन बाद में. has got modified stem, and you can see several projections coming out from the main part of the stem. एक bud type का outgrowth आप कैक्टी में देखोगे, because it is a modified stem and it also the leaves are modified into spines in it. In that we can see that projections when we catch it from the sow it in the soil, then we can see that the outgrowth can grow into a new plant. Then I discussed yesterday about this term which is known as grafting and layering. Grafting, we can see that it can be done with the help of two varieties of the same species, and it can develop into a third variety in the same species. Like अगर रोज को अगर हमको अलग कलर डेवलप करना है, तो इस ग्राफ्टिंग मेथड से आप देखते होंगे आजकल रोज का बहुत सारा कलर्स में रोज अवेलेबल है, येलो, पिंक, रेड, व्हाइट. तो पहले क्या था कि इसमें मेन जो कलर है व्हाइट एंड रेड था, और इसको फिर मिक्स करके आपको ग्राफ्टिंग के थ्रू
by separating this scion and stalk part, और उसको के बाद काफी समय है देखा है एक न्यू प्लांट डेवलप करता है, एंड दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर. तो ये प्रोसेस आपका मैंगो में भी देखा जा सकता है, साइट्रस प्लांट्स में भी देखा जा सकता है, ग्राफ्टिंग मेथड. बट इन जैस्मीन एक वैसा प्लांट है जिसका की ब्रांचेस थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. तो उसको क्या किया जाता है कि जब वो टॉल हो जाता है तो उसको ऐसा बेंड करके और सॉइल की तरफ मोड़ा जाता है ताकि वो सॉइल में अटैच होने के बाद उसमें रूट्स का ग्रोथ हो जाए. और उसको बेंडिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ के रखा जाता है, उसको ऐसा बेंड करके प्रेस कर दिया जाता है कि वो फिर अपने पोजीशन पर नहीं जाए और वो सॉइल के कांटेक्ट में रहे. जब वो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है तो दैट डेवलप रूट पार्ट, और तब उसको अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच कर दिया जाता है जब वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है अपना सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए बाय द रूट्स. कैन बी टर्म्ड एज लेयरिंग. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ, लास्ट डे हम लोग पढ़े हैं कि नॉचेस होता है लीव्स में ब्रायोफाइलम का, जो हम ग्रुप में आपको भी डाले हैं कि नॉचेस से बड लाइक प्रोजेक्शंस रहता है उसके बेंडिंग पार्ट में, लीफ के बेंडिंग पार्ट में, और उस बड को अगर आप प्लांट करते हो सॉइल में तो सो करते हो सॉइल में, तो आप देखोगे कि एक ब्रायोफाइलम का न्यू प्लांट ग्रो करता है. देन कम्स योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम रूट्स. रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है? तो वो आपको स्वीट पोटैटो में देखने के लिए मिलता है कि जो स्वोलन आउट ग्रोथ है स्टेम का, उसको कट करके आप फिर दूसरी जगह सो करोगे तो यू विल सी दैट इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. नाउ चिल्ड्रन, yesterday I told you that this vegetative propagation has got some advantage and disadvantage. Do you all remember that? Advantage? Yes, or ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. what are the advantages? We take The plants which are grown by asexual reproduction take less time to grow also and they bear flower and fruits earlier than the plants produced from seeds. The new plants are exact copy or clones of the parent plants and have the same desirable characteristics of their parent. So- Disadvantage is that they have also the same they also get the same disease which their parents are not immune. Okay. If they are so similar to their parents that if the parents are infected by one of the disease, then it can be transmitted into the offspring plant also. Clear? So this till here, I want to know that all the points are clear or not. सब पॉइंट आप लोग का क्लियर है? कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो आप पूछ सकते हो. यू कैन आस्क. no, ma'am. Anybody? किसी के पास कोई क्वेश्चन है दिमाग में? ओके, ठीक है. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन is your sexual reproduction. Now children, tell me, what is this sexual reproduction and what are the organ present in this plant that will be responsible for sexual reproduction? Where are the sex organs present in a plant? Flower. Very good. Flower. Flower is that part where the sex organs are present. But before that, going to the flower part, I want to tell you about that. Can all the flower contain both the sex organ, or they are having one sex organ, they are transmitted from one organ? ये सब कैसे होता है? तो ये आप लोग को बताना Ma'am, सब. both. First of all the plants do not have both the sex organs. सभी प्लांट में सेक्स ऑर्गन्स, both the sex organs are not present. Okay? The plants which are having only one sex organ, they are known as unisexual flowers. And the plant which are having both the sex organ in the same flower, Bisexual. Sexual flowers. Bisexual. bisexual flowers. Now, if both the sex organs are present in the same plant or same flower,
then it is very easier that they will come in contact, they will fuse, they will have fertilization, and that will develop into seed, and that will develop into a new plant. Seed जब हम sow करेंगे तो वो new plant में grow करेगा. लेकिन वैसे प्लांट के बारे में जिसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन्स होता है, उसमें कैसे होगा fertilization? How will the fertilization? Pollination. By the process of Pollination. Pollination is one of the factor by which one of the, suppose ये आप लोग जान लो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन होता है, क्या होता है फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? Stamen. और फीमेल पिस्टल. ठीक है, Carpel and pistil. ठीक है, पिस्टल और कार्पल ये आपका फीमेल पार्ट है और वो आपका मेल पार्ट है. तो एंथर अगर प्रेजेंट है किसी एक इंडिविजुअल प्लांट में, तो उसको क्या होगा, फीमेल के पास ट्रांसफर करना होगा. तो वो ट्रांसफर होगा बाय द डिफरेंट एजेंट्स. एंड व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? Wind, water, insect. Air, water, insects, birds. 6 में पढ़े हो. The agents of the agents which carry this pollen anther to the stigma is known as the pollination part. And what are the pollinators? ये आप लोग पढ़े थे कि birds, insects, man, human being, or other like wind. These are the carrier agent which carry the anther part to the stigma part of the flower. Clear? और ये हमेशा देखते हैं कि जो anther, जो male reproductive part होता है, जो stamen होता है, that is lighter in comparison with the female part. क्योंकि उसको क्या होता है, कैरी होना रहता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना होता है. तो इसीलिए अगर वो लाइट नहीं होगा तो ये इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल्स के थ्रू कैरी नहीं हो सकता है. तो द नेचर हैज प्रोवाइडेड सच अ प्रोसेस, सच अ मेथड कि जो एंथर होगा वो बहुत लाइट होगा और वो विंड, वाटर, डिफरेंट एनिमल्स के बीक से, माउथ से, फर से ट्रांसफर हो सकता है. क्लियर? So how can we define pollination? The transfer of pollen grains from the anther to the stigma in flower is known as pollination. इसको pollination कहते हैं, ये process है. Then pollen grains are transferred either from anther to stigma of the same flower. Self pollination. अगर वो same flower पर transfer होता है तो that is known as the सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब एक ही प्लांट में वो कैरी हो रहा है, लेकिन अगर वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट में है और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन. मतलब जैसे सपोज कर लो हम पपाया का एग्जांपल लेते हैं. पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट है, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे नहीं होते हैं, तो उसको क्या होगा, कैरी होना पड़ेगा. तो जब वो कैरी होगा तो दोनों पपाया ही प्लांट रहेगा. एंथर भी एक प्लांट में होगा और दूसरे प्लांट में कार्पेल या पिस्टल होगा. तो एंथर को कहाँ कैरी होना पड़ेगा, कार्पेल या पिस्टल पे. तो दैट विल and in that way when it is carried, then that will have the fertilization process. और इस fertilization process को हम लोग define कर सकते हैं कि the pollen grains germinate when they fall on the stigma of the flower of the same species. A pollen tube is produced that reaches the ovule. The male and the female reproductive parts are called gametes. अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल और फीमेल का, उसको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट नहीं बोलते हैं, दैट इज नोन एज गैमेट्स. उसको गैमेट्स बोला जाता है. और व्हेन दे आर फ्यूजिंग, और जब उसमें फ्यूजन हो रहा है तो दैट इज नोन एज
जाइगोट मीन्स व्हेन दे आर गेटिंग टुगेदर, एक साथ जब हो रहा है तो एक दूसरे में जब वो फ्यूज कर रहा है, तो फ्यूज करने के बाद दैट इज फॉर्मिंग अ जाइगोट. And that zygote, this process of fusion of male and female gamete is called fertilization. उस process को fertilization कहा जाता है. And the zygote then divides inside the ovule to form a baby plant called the embryo. और तब उसमें से एक बेबी प्लांट निकल सकता है. जैसे कि फ्यूजन के बाद वो कहाँ जाएगा? ओवरी में जाएगा. ओवरी क्या है? फीमेल पार्ट है. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ये 3 पार्ट है आपका फ्लावर का, फीमेल फ्लावर का. तो जब ये एंथर गया तो एंथर ट्यूब से होते होते ये कहाँ चला जाएगा? ओवरी में जाएगा, जहां फ्यूजन हो. फ्यूजन के बाद वो क्या डेवलप करेगा? सीड्स डेवलप करेगा. कोई भी प्लांट में जब आपका सीड्स कहाँ डेवलप होता है? फ्रूट के अंदर होता है ना. तो ये ओवरी जो है वो क्या हो जाता है? फ्लैशी ओवरी बनता है. राइपेंड ओवरी. हाँ, वो किसी भी चीज, जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं तो देखते होंगे उसके ऊपर एक क्या होता है? एक कवरिंग होता है. सीड अंदर में एम्बेडेड होता है और बहुत अच्छे से उसको कवर किया जाता है बाय द नेचर. वी आर नॉट कवरिंग, नेचर उसको ऐसे बनाए हुए है. और तब उसके अंदर आपका क्या उस फ्लैशी कोट के अंदर क्या होता है? सीड्स होता है. तो सीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट. तो आप देख लो कि नेचर कितने अच्छे से प्रोटेक्ट करके उसको उसके अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर उसको डेवलप करवाता है. तो जब ओवरी डेवलप करता है तो धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? हमारे लिए वो फ्रूट बन जाता है. डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. और वो हम लोग खाते हैं और बीज को क्या करते हैं? इधर उधर फेंकते हैं. फेंकने के कारण भी आपका पॉलिनेशन होता है बाय थ्रोइंग. मैन के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. मैंगो के सीजन में मैंगो खाते हैं, उसका गुठली इधर उधर डाल देते हैं. लेकिन मैंगो के केस में बेटर प्लांट डेवलप करने के लिए हम लोग को ग्राफ्टिंग करना पड़ता है. लेकिन प्लांट आपको सीड से भी ग्रो करेगा. ठीक है. बेटर प्लांट हम लोग किसको कहते हैं? जो हमारे लिए यूजफुल है. कैसा? अच्छा फ्रूट दे और अच्छा ईल्ड दे. ईल्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा हमको फ्रूट प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स प्रोवाइड करे. तो चाहे वो ग्रेन्स हो, फ्लावर्स हो, या जो भी पार्ट हम लोग उसका यूज कर रहे हैं प्लांट का. किसी में हम लोग सीड्स यूज करते हैं, किसी में फ्रूट यूज करते हैं. तो ये जो भी पार्ट हम यूज करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन आवर यूटिलिटी. हमारे यूटिलिटी के हिसाब से डेवलप करता है, लेकिन डिपेंड करता है, बट वो डेवलप करता है अपने नेचर के हिसाब से. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? मस्टर्ड लेते हैं. तो मस्टर्ड का क्या हम लोग खाते हैं? सीड खाते हैं. वी आर नॉट यूजिंग इट्स फ्रूट. उसके फ्रूट को हम लोग थ्रो कर देते हैं, ड्राई करवा के उसको थ्रो करते हैं, वो हस्क की तरह निकल जाता है. लेकिन उसके सीड को हम लोग उसके ऑयल निकालने के लिए यूज करते हैं. तो दिस इज according to our necessity we are utilizing the plant in different parts are being utilized by us. तो आप जब जाइगोट डेवलप किया तो जाइगोट डेवलप करने के बाद वो क्या बनाएगा? एक बेबी प्लांट निकलेगा. और वो बेबी प्लांट कहाँ से निकलेगा? एम्ब्रियो से निकलेगा. क्लियर? अब आप देखो, कभी पपाया कट करते हुए अपने मदर को देखे हो? पपाया किचन में? यस. पपाया कितना होता है? पपीता आप देखते होगे बहुत फ्लैशी होता है. यस. उतने बड़े पपीते में कभी कभी 1-2 सीड ही रहेगा या फिर बहुत सारा सीड रहेगा. तो बहुत सारा. हाँ, कभी कभी बहुत सारा सीड होता है और कभी कभी बहुत कम सीड होता है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन वो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो जो राइपन ओवरी है उस ओवरी को हम लोग खा ले रहे हैं उसके फ्लैश के कारण और उसके टेस्ट के कारण. तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसके किस पार्ट को खाते हैं. क्लियर? अब आप लोग इस संडे, कमिंग संडे
we will have our test, साइंस टेस्ट होगा। साइंस टेस्ट में आप लोग देख लो, ये बता दीजिए आप लोग कि मोशन एंड टाइम का हो गया था टेस्ट। ओमकार, मोशन एंड टाइम का टेस्ट हुआ था आई थिंक 11th को, जब फर्स्ट ये हुआ था हाफ ईयरली के बाद, तो मोशन एंड टाइम ही ना हुआ था। No, ma'am. Acid, base, and salt. No, ma'am. No, ma'am. तो इस टर्म में कहाँ करवाए हैं अभी? मोशन एंड टाइम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आज टुडे आई लेट यू नो, आज हम बता देंगे आपको, अभी थोड़ी देर में बता देंगे। क्लियर? पोर्शन क्या होगा सो अभी तुरंत बता देंगे। अभी जितना आप लोग को उसमें से मैम अक्टूबर 11 को एसिड बेस एंड साल्ट का टेस्ट हुआ है। एसिड बेसिस हुआ है, तब आप लोगों का मोशन एंड टाइम का होगा। अगर एसिड बेसिस हुआ है तो आप लोग को ये मोशन एंड टाइम पोर्शन रहे। ठीक है, उस चैप्टर में आप लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लेना और डेफिनेशन टर्म्स है, जो भी है आप लोग को बहुत ज्यादा उसमें नहीं है क्वेश्चन आंसर, ज्यादा आपका न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स भी देखिएगा और आप लोग जो डेफिनेशन टर्म्स है, डिफरेंशिएट है, वो आप लोग देखिएगा पोर्शन एंड टाइम, अगर वो है तो। जैसे आज कंफर्म कर देंगे आप लोग को पोर्शन, वो पढ़ना है आप लोग को। अभी जो ये चैप्टर हम लोग पढ़े उसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन है? मैम आप जो पपाया का बता रही थी मैम, तो मैम उसमें मैम सीड का नंबर मैम जितना आंसर आए उस पर डिपेंड करेगा ना मैम? नहीं, आंसर के पर नहीं डिपेंड करेगा। जब आप तो मैम उतना ओव्यूल फ्यूज होगा मैम, तो उससे ज्यादा सीड बनेगा। फ्यूज हुआ ओवरी में ओव्यूल होता है। जब हम फ्लावर बताएंगे ना तब आप लोग को बताएंगे ये बात। जितना फ्यूजन होगा उतना सीड का फॉर्मेशन। ओवरी में ओव्यूल होता है। ओव्यूल आप देख सकते हो, आप चाइना रोज का प्लांट लेना और हम किसी दिन आपको ऑनलाइन में ही डिसेक्ट करके दिखा देंगे। उसमें बहुत छोटा छोटा ओव्यूल होता है और वो क्या फ्यूजन होगा एंथर से, तो जितना फ्यूजन होगा वो दैट विल डेवलप इनटू द सीड, वही आपको सीड। क्लियर? यस सर। और कुछ बात जो आप लोग को पूछनी है? नो। ओके, तो कल आप लोग थोड़ा मोशन एंड टाइम को रिवाइज कर लीजिएगा, जस्ट रिवाइज इट, उसको रिवाइज करके आइएगा ताकि हम लोग थोड़ा एक क्विक रिवीजन भी करेंगे और फिर दिस चैप्टर का थोड़ा पोर्शन और आगे भी पढ़ाएंगे। ठीक है? एनीथिंग मोर यू हैव टू आस्क? नो। नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें मोशन एंड टाइम में मोशन एंड रेस्ट डिफरेंशिएट, रेक्टिलिनियर मोशन, speed, then different formulas of speed, average speed, difference between uniform motion and non-uniform motion, structure of simple pendulum, time period, and some simple calculations related to measuring of speed and graph. What is graph? Clear? This is the whole. कंपैरिजन ऑफ स्पीड याद करना है क्या? What you मैम? want? कंपैरिजन ऑफ स्पीड याद करना है। Comparison of speed क्या दिया हुआ? नहीं, आप लोग केवल इसका याद रखोगे, लाइट और साउंड का। बाकी आप लोग को वो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज दिया हुआ है। ठीक है? ओके, तो शुड बी एंड मीटिंग? यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बता दीजिए ना। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम। गुड बाय मैम। क्या पूछना है? Aditi, ask your question again. मैम जैसे बार ग्राफ के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए ना। Graph. Yes मैम, प्लीज। Okay.
first of all, this is a pictorial representation of any idea or concept. किसी भी concept या idea को कैसे picturize करके हम कि कोई भी डाटा को दे सकते हैं, वो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं. और सबसे पहले बार ग्राफ है, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इवेंट्स के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या किसी भी डाटा के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है. तो वो आपको बार ग्राफ के थ्रू ज्यादा अच्छा दिखेगा. ठीक है. देन दिस पाई ग्राफ है कि एक ही टाइम में आप बहुत सारा कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसी भी इवेंट में कौन कौन सा डाइवर्शन है, कैसे डाइवर्ट कर रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे डाइवर्ट कर रहा है, कैसे उसमें अंतर है, ये आप लोग को इसमें डिफाइन करना है. पाई ग्राफ के थ्रू वो ज्यादा अच्छा पिक्चराइजेशन हो सकता है. उसके बाद then after that this bar graph or any type of motion what we have to represent over here, this representation can be given by assuming the scale. ये आपको स्केल को assume करके आपको पता चल सकता है. तो वो एक प्लॉट में एक तरफ आप उसका कंपैरिजन करिए टाइम और दूसरे तरफ डिस्टेंस का, तो ये आपको पता चलेगा कि वो उस कंपैरेटिव स्टडी में उसमें किस तरह से यूनिफॉर्मिटी आ रहा है स्पीड में, या स्पीड में यूनिफॉर्मिटी टाइम के रिलेशन में नहीं है, ये आपको डिफाइन करता है. लेकिन जहां तक बार ग्राफ की बात है, तो बार ग्राफ आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये दिखाता है कि कौन सा पार्ट किस में आपको कौन सा, अगर मान लो दो ग्रुप है तो दो ग्रुप बार ग्राफ के थ्रू आप ये बता सकते हो कि ये ग्रुप इस टाइम में इतने इंक्रीजिंग पोजीशन पे गया और दूसरे टाइम में वो कितने डिक्रीजिंग पोजीशन में गया. ये आप कंपैरेटिव स्टडी उसके थ्रू कर सकते हो. लेकिन बार ग्राफ के थ्रू आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो दिखा सकते हो, लेकिन पाई ग्राफ की तरह एक टाइम में नहीं दिखा सकते हो. मान लो आप किसी स्कूल के, जैसे आपके बुक में जो दिया हुआ है पाई ग्राफ के बारे में, मेथड ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल, तो ये एक ही बार में बहुत सारे मोड ऑफ ट्रैवलिंग को कंपेयर कर रहा है. लेकिन यही चीज आप बार ग्राफ में नहीं दिखा सकते हो. तो दोनों का यूटिलिटी